So hello guys and welcome back to Agri Edge Research, where we try to share cutting edge insights for us across different sectors, overall economy, and we try to decode some stock market psychologies. Today we are going to talk about a very fundamental thing that really affects the top lines and bottom lines of a company, that also helps us to understand the fundamental structure of the company and the way the company is going to make decisions and the way the company positions its products in the markets. And that very important term is pricing. I was reading a very good book on pricing, strategies and tactics for pricing. एंड आई फील कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें ना एक बार में समझ नहीं आती, बार बार पढ़ना पड़ता है. अब जितना ज्यादा उन चीजों को पढ़ोगे उतना ज्यादा माइंडसेट जो है बिल्ड होते रहता है. एंड आई रेड इट एंड देयर आर सम थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर, so that's what we are doing. So hello guys, I'm the student of Parth Verma sir, the valuation school चलाते हैं. And under his guidance I was doing the equity research cohort. Recently I went to one of his meetups in Indore. It was a great experience. I had got a chance to meet him. It was a great experience there, learning, and I got quite a lot of learning from him. People with similar mindset in terms of financial markets came together, and we had a very great conversation and a meetup there in Indore. Let's come back to the topic. We were on pricing. So when we talk about a particular product और अ पर्टिकुलर कंपनी, सबसे पहले कंपनी पे आते हैं कि कोई भी एक कंपनी क्यों बनती है. तो कोई भी एक कंपनी इसलिए बनती है, आइदर वो प्रॉफिट्स बनाना चाहती है, पैसे बनाना चाहती है, या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हम बात करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो प्रॉफिट बनाना चाहती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इसलिए आए ताकि हम पैसा बना सकें. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी हु इज सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो जो प्रोडक्ट है इतना डीप में जाके समझना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्यों बिकता है. आइदर हम हमारे कंपटीटर से सस्ता बेचते हैं, या फिर हमने कुछ बेहतरीन इनोवेट कर लिया है, या फिर हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना हाई स्टैंडर्ड रखा है जो हम प्रीमियम प्राइस उसको रखे हैं उसको जस्टिफाई करता है. देखिए, एक WTP करके कॉन्सेप्ट है, विलिंग टू पे, कि हमारा कस्टमर जो है वो कितना विलिंग टू पे है, वो कितना पे कर सकता है. सो अगर आप बोल रहे हो कि मैंने एक शर्ट ली और उसको बेचा, तो एक नॉर्मल शर्ट जो कि ब्रांडेड नहीं है वो दैट इज ओनली अ पीस ऑफ क्लॉथ, 500 रुपए तक बिक जाएगी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट आई हैव सोल्ड अ ज़ारा शर्ट, देयर इज अ ब्रांड एसोसिएटेड विद इट. प्रीमियम में बिक रहा है. क्यों बिक रहा है प्रीमियम में? ब्रांड वैल्यू है. दीज आर सम इनटेंजिबल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ज़ारा का शर्ट. की ब्रांड वैल्यू है, यू आर गोइंग टू गेट द लेटेस्ट ट्रेंड्स. इफ यू गो इन बिटवीन ऑफ लॉट ऑफ पीपल, यू कैन गो एंड फ्लेक्स योर ज़ारा टी शर्ट or shirt, whatever you're wearing in front of people. So it gives you a feeling of aspiration or a feeling of stature that is associated with wearing of that Zara shirt. Or whether you're buying an iPhone, so why you're buying that? Because there is a psychological value that is associated with it. When we talk about any company, these companies are divided into two different categories based on their products and pricing. The first one is the monetary pricing, and the second one is the value based companies. In monetary one, recently we talked about that shirt. So shirt है ना, that is only a piece of cloth. But when we talk about Zara का shirt, now there is a lot of intangible things that are associated with it, which makes or which lets or enables the company to charge premium based on that. So now the Zara one is the value based company. Or when we talk about some random company of phone, and when we talk about iPhone is a value based company, where the company is not only fulfilling the demand of a particular product in the market, but also it has reached the amount of efficiency in terms of creating a perception of their product in the minds of people, that now they are able to consistently make fluctuations or control the demand of their product in the markets. This is very important. When we talk about a particular product, we need to understand how better the perception is created by the management
in the minds of the customer so that the product will be sold. क्योंकि अगर कोई भी परचेस करता है तो यही दो बातें हैं, या तो उसमें कोई मॉनेटरी है या फिर उसमें कोई वैल्यू एडिंग है जिसके बेस पे डिसीजन मेकिंग होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसीजन मेकिंग इज साइकोलॉजिकल एंड नॉट टेक्निकल, राइट. दैट इज कि आपको दिख रहा है एक चीज 100 रुपए की, एक चीज 1000 रुपए की है, लेकिन आपके माइंड में जो केमिकल लोचा होगा ना, associated with 100 and associated with 1000, irrespective of whether you have money in your pockets or not, will be totally different. आपने नोकिया 3310 देख लिया और उसके बाजू में आपने आईफोन देख लिया, आपके जेब में भले ही पैसा नहीं है लेकिन आईफोन चाहिए ना आपको. दैट इज द एस्पिरेशन, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर कंपनी, तो उसके ना कुछ ब्लॉक्स आ जाते हैं, उसका कुछ एक फ्लो आ जाता है. दैट इज प्रोडक्ट, देन फर्स्ट इज द प्रोडक्ट, देन वी टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, और वी टॉक अबाउट परसेप्शन, देन वी टॉक अबाउट कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, एंड एट द एंड वी टॉक अबाउट प्राइसिंग. सो दिस इज द वे थिंग्स गो ऑन. पहले हमने प्रोडक्ट को बनाया, पहले हमने प्रोडक्ट को एफिशिएंट बनाया, फिर उसको एफिशिएंटली हमने एडवर्टाइज किया, फिर हमने उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाया, और एंड में प्राइसिंग आता है. तो जो पहली तीन चीजें है ना, ये पहली तीन चीजें क्या करती हैं, ये वैल्यू क्रिएट करती है, और जो लास्ट वाली प्राइसिंग है ना, वो वैल्यू कैप्चर करती है. सी व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज समवेयर समथिंग वेयर यू क्रिएट वाई वैल्यू एंड देन ट्राई टू कैप्चर एक्स परसेंटेज ऑफ मार्केट. क्या समझे? कि हमने कोई वैल्यू क्रिएट करी और फिर वही सेम वैल्यू जो मार्केट में चल रही है उसके अंदर से आपने कितने कस्टमर्स अक्वायर किए, कितने मार्केट शेयर अक्वायर किया, दैट इज बिजनेस. तो आप अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पॉइंट पे लेकर के आओगे मार्केट्स के अंदर, और उसको किस तरह से पोजीशन करोगे कि आप वैल्यू कैप्चर कर पाओ, मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओ, वो आपकी प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा, राइट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैल्यू कैसे कैप्चर करेगा? जैसे हमने बात करी कि आईफोन है, आईफोन को बनने में 30,000 मैक्सिमम, इतना भी नहीं लगता होगा, लेकिन उसको बेचा कितना, लाख रुपए में. तो वैल्यू कैप्चर कितना हुआ, 70,000. सो द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द गैप बिटवीन द सेलिंग प्राइस, द मोर इट इज, दैट इज समथिंग दैट शोज द डोमिनेंस ऑफ द कंपनी इन दैट प्रोडक्ट पूल. अगर कंपनी के पास इतना डोमिनेंस नहीं होता ना, तो वो इतना बड़ा गैप को बना नहीं पाता, इतने बड़े मार्जिन को ले नहीं पाता. ऑल्सो जो नॉर्मल कंपनीज है, दैट उनके पास क्या दिक्कत है कि उनका डोमिनेंस नहीं है मार्केट में. उन्होंने कोई ऐसी कोई कॉमन या फिर अनकॉमन वैल्यूज को खुद से या खुद के प्रोडक्ट से जोड़ नहीं रखा. जबकि जो वैल्यू बेस्ड है, जैसे कि आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू इनोवेशंस हैपनिंग विद इट. एवरी ईयर कोई ना कोई नया अपडेट आता है, कंपनी का पूरा मॉडल नया आ जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन इट. सो कंटिन्यूअसली कंपनी क्या करती है, उसके अंदर चेंजेस लाती है, जिसकी वजह से जो अगली बार जो फोन आएगा वो ज्यादा महंगा आएगा, लेकिन जो उसकी क्वालिटी और चेंजेस और अपडेट्स है, दैट विल जस्टिफाई इट्स प्राइस. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ की इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लोगों के हाथ में पैसा है कि नहीं, क्योंकि आज ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके हाथ में पैसा है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंस इजीली हो जाएगी. कोई भी चीज आपको लोन पे, ईएमआई पे मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली ले लोगे. अब परसेप्शन कैसे बनाया जाता है, और परसेप्शन की वजह से डिमांड और सप्लाई. आप मुझे एक बात बताइए, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास आप जब शोरूम में जाएंगे और आप उनसे थार मांगेंगे, कि आपको मोस्टली ऐसा ही लगता है कि हर बार आपको वेटिंग में मिलेगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास पैसा नहीं है क्या केपेक्स करने का, या मारुति सुजुकी के पास पैसा नहीं है क्या केपेक्स करने का, या फिर कोई भी कंपनी के पास पैसा नहीं होता क्या केपेक्स करने का? नाइकी के पास पैसा नहीं होगा? वियतनाम में बनता है सस्ता जूता, उसके पास पैसा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. फिर भी डिमांड को बढ़ते रहने का और सप्लाई को कम रखने का, इसकी वजह से क्या है कि प्राइस आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो. This is done very fundamentally, and this has been done with a conscious call, with strong strategies and tactics. इसको माइंड में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है.
क्यों ऐसा है कि एक नॉर्मल जूता नॉर्मल होता है लेकिन एडिडास का जूता महंगे में बिकता है, नाइकी का जूता महंगे में बिकता है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जाती है, क्यों? जैसे कि अब मैंने रिसेंटली आई हैव सीन सम इन्फ्लुएंसर, उन्होंने एक जूता खरीदा था 6 महीने पहले, आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल है। अगर उसका फ्लो, वो जो प्रोडक्ट है उसका फ्लो इन द मार्केट बढ़ जाता तो क्या उस शू की वैल्यू कम हो जाती? क्या? बिल्कुल कम हो जाती। लेकिन अगर आपका ब्रांड जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम है तो आप उसका प्राइस हमेशा बढ़ते ही रहेगा क्या? आप अपना प्राइस बढ़ा ही सकते हो क्या? डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। ये बात वॉरेन बफे ने बोली थी कि अगर आप आपके प्रोडक्ट का प्राइस 10% बढ़ाने से पहले मंदिर में जाके मत्था टेकते हो कि हे भगवान बचा लेना, then you are doing something wrong with the business. Don't do it. Then you don't have dominance in the industry that you are working in. Because you must always have the dominance in the market, that even if you raise 10% or even if you say in the markets that अब मैं जो भी माल दूंगा वो मेरे को कैश पे चाहिए, कैश है तेरे पास तो कैश दे और लेके जा तो ही बेचूंगा, दैट शोज द डोमिनेंस, राइट? इन टर्म्स ऑफ दैट रिसीवेबल्स भी क्या कम होंगे? क्या रिसीवेबल डेज भी कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि अब तो अपफ्रंट कैश में काम हो रहा है, माल ले पैसा दे, बात खत्म। So that is also very very important. Now there we talked about the 5 determinants, that is product, communication, perception, negotiation and timing and completion. अब देखो जैसे नेगोशिएशन है, कोई अगर प्रोडक्ट है उसको परसीव कराया जा रहा है, जैसे कि आप ना ब्लिंकिट या जेप्टो पे देखोगे ना ईयरबड्स, उस पे वो लिखा हुआ होता है कि एमआरपी या वो 5,000 3,000, लेकिन जब वो बेचता है 450 600 रुपए में, इतना बड़ा परसेप्शन क्रिएट करके टोटल हाफ कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि जो नॉर्मल लोग है ना उसको खरीदे, क्योंकि कोई बंदा अगर एकदम प्रीमियम चीज खरीद रहा है और आप उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या माइंड में परसेप्शन बनेगा कि साला ये अगर बोल रहा है कि इसका ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा है तो इतना डिस्काउंट दे क्यों रहा है? See, discounts are the feature of markets and discounts are feature of every markets in India, at least in India. क्योंकि इंडिया में डिस्काउंट नहीं मिला तो आदमी खरीदता ही नहीं। लेडी को ना 25 रुपए 10 रुपए के ऊपर भी ना जो सब्जी खरीदते उस पर धनिया फ्री चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए वैल्यू एडिंग, या फिर उसको डिस्काउंट चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो फिर तो काम खत्म हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बहुत प्रीमियम चीज बेच रहे हो, अब कल जाके आईफोन 10,000 का फोन बेचेगा तो वाट लग जाएगी ना आईफोन की। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई कॉफी 20 की बेच रहा, कोई 200 का बेच रहा, दिक्कत क्या है? दिक्कत है परसेप्शन का, राइट? चाय चुप्पी चाय कप्पी भी 20 रुपए की चाय बेच रहा भाई, 20 रुपए की कॉफी बेच रहा, लेकिन स्टारबक्स 200 की क्यों बेच पा रहा? दोनों के बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट है, दोनों ने अपने प्रोडक्ट का परसेप्शन लोगों के माइंड में अलग अलग बनाया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऑल्सो देखो जो वैल्यू बेस्ड ब्रांड्स है ना, वैल्यू बेस्ड ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, amid any tussles or any tumultuous situations or any word that you use for uncertainty, उसके बावजूद अपने भाव को बढ़ा सकता है ना, वो वैल्यू बेस्ड कंपनी, एंड दैट इज द बेस्ट कंपनी, क्योंकि उसके अंदर आपका जो बायर है वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपने उसको बेस्ट डिलीवरी दी। जो आप है, आपने बड़ा गैप को अक्वायर किया, बड़ी वैल्यू कैप्चर करी, आप भी खुश और आपका इन्वेस्टर भी खुश, क्योंकि कंसिस्टेंट कैश फ्लो है भाई। वॉल्यूम भले ही कभी ना कभी एप्पल का ऊपर नीचे हो, लेकिन प्राइसिंग और मार्जिन्स में एप्पल ऊपर नीचे हो जाए ये बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So we also like I talked about monetary value and psychological value and stuff like that. क्या होता है कि जब कंपनी अपने आप को शिफ्ट करती है ना, जब कंपनी अपने आप को मॉनेटरी वैल्यू से वैल्यू कंपनी बनाती है, तो क्या होता है, शिफ्ट आता है। कंपनी टैक्टिकल से अब स्ट्रेटेजिकल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर सपोज कार्स है, द
automotive industry is strongly correlated or works within function of the interest rates, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट 95-96% लोग इंडिया में जो कार खरीदते हैं वो फाइनेंस कराते हैं, ईएमआई जो हफ्ता होता है वो हर महीने उनको आता है, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे के होने की वजह से क्या ईएमआई के अंदर जो पैसा रहेगा क्या उसके अंदर घड़चढ़ होगी क्या? बिल्कुल होगी। अब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो गाड़ियां बिकेगी, लेकिन अगर बढ़ जाएंगे तो ईएमआई महंगी हो जाएगी, लोगों के बटुओं में से पैसा ज्यादा जाएगा, तो लोग डिफर करेंगे वो खरीदना। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ग्रेट कंपनी है, जैसे कि आप बात करेंगे इंडिया में फॉर सपोज महिंद्रा की, अब मार्केट में कुछ भी चल रहा है इस रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा है, आपका कोई भी छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे जा रही है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका गाड़ी बिकने वाला है, आपका बिकने वाला है, आपका मार्जिन कम होने वाला बिल्कुल नहीं, एक्सपांशन ही होगा, क्योंकि आप प्राइस बढ़ा के रखते हो। आप कोई भी कार के शोरूम में चलना, उसको बोलना कि मेरे को एकदम प्रीमियम कार चाहिए, वो बोलेगा यार 6 महीने का वेटिंग। उनके पास हमेशा बैक ऑर्डर्स पड़े ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड रखेंगे, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे, उनको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे, पूरे साल में सेल्स बुक करते रहेंगे। उनकी बैलेंस शीट भी एकदम क्लीन, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी एकदम क्लीन, उनका सब कुछ क्लीन। लाइबिलिटीज थोड़ी शायद बढ़ सकती है क्योंकि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स आ जाते हैं, एक बार वैल्यू डिलीवर कर दी, क्योंकि कभी कभी कैंसिल भी हो सकती है, वैल्यू एक बार डिलीवर कर दी वो आपकी पीएनएल में आ जाएगा, बुक हो जाएगा एज अ रेवेन्यू। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करो, लेकिन क्या है, 2-3 चीजें हैं। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया लेकिन आपने प्राइसिंग भी बहुत अच्छी रखी, तो आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, आपकी कंपनी चल जाएगी, आपका रेवेन्यू चल जाएगा। आपका प्रोडक्ट इनएफिशिएंट है, आपकी प्राइसिंग बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आपका चल जाए, क्योंकि शायद आपने वैसा परसेप्शन बनाने का ट्राई किया, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं चलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाए, प्राइस की वजह से भी कभी कभी परसेप्शन क्रिएट होता है। आपको लगता है कि कोई एक चीज 10 रुपए की और दूसरी चीज 1000 रुपए की है, तो आप बोलते हो यार ये 1000 रुपए की चीज कितनी क्रेजी होगी। कई बार नहीं भी होता है, लेकिन वो परसेप्शन बनता है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और प्राइसिंग बेटर है तो भी कोई फायदा नहीं, और अगर प्राइसिंग वर्स्ट है, प्रोडक्ट भी वर्स्ट है, फिर तो राम बचाए आपको, फिर आप धंधा मत करिए, फिर आप कुछ और देखिए अपना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज वी टॉक कि वैल्यू क्रिएशन के जो ड्राइवर्स है, दोज आर प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो वैल्यू कैप्चर करता है विच इज फॉर द फर्म, दैट इज प्राइसिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर सपोज अब जब मैंने आपको ये बात बताई तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 कंपनीज है, पहली एप्पल, एप्पल तो हमेशा होनी है, एप्पल, शाओमी और कोई नॉर्मल स्टार्टअप होगा। अब एप्पल जो है वो वैल्यू क्रिएशन के टर्म्स में सबसे ज्यादा है, उसके बाद वैल्यू कैप्चर में भी सबसे ज्यादा है। शाओमी वैल्यू प्रोडक्शन में अच्छा है और वैल्यू कैप्चर में मीडियम है, जबकि कोई नया स्टार्टअप है वो वैल्यू बहुत अच्छी दे रहा है, हाई दे रहा है, शाओमी की कंपैरिजन नहीं दे रहा है, लेकिन क्या वो वैल्यू कैप्चर कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि उसका मार्केट में एक्सपीरियंस, उसकी मार्केट में लॉन्चिंग। अब आप कल जाके कोई ऐसी कंपनी पे ऐसी कंपनी की फोन या फिर ऐसी कंपनी का गाड़ी नहीं खरीदना चाहेंगे जो बहुत टाइम से सुनी नहीं है, लोगों ने सुनी नहीं है। आपने इंपोर्टेड कार मंगाई, रोल्स रॉयस मंगाई, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी प्रीमियम स्टफ। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई ऐसी चीज की जो थोड़ा सा कमोडिटाइज्ड है, तो वैसी चीज में हम थोड़ा सा डिफर करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हमारे आसपास जो लोगों ने उनके रिव्यूज है उसके हिसाब से जो है काम करते हैं। अब कैसा है कि मार्केट्स में जो प्राइस है ना, उसको हमेशा प्रॉफिटेबल रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स है जो रियली आपके प्राइस को डिफरेंशिएट करे या फिर उसके अंदर चेंजेस लाएंगे। क्या हो सकते हैं? जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो सकता है, इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है, कंज्यूमर चेंज प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है, बहुत चीजें चेंज हो सकती है। सो दीज थिंग्स आर नेवर गोइंग टू बी स्टैटिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूअसली। सो ये जो कंटिन्यूअस चेंज के एमिड दिस कंटिन्यूअस चेंज, द कंपनी विच क्रिएट्स वैल्यू, कैसा वैल्यू? विच कैप्चर्स वैल्यू,
is the value based company. This is the fundamental sar of whatever we talked. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो जब भी कभी हम कुछ चीजें एनालाइज करने का ट्राई करते हैं तो हम दो तीन चीजें हमको खुद को पूछना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये क्या वैल्यू बनाती है, क्या वैल्यू ऐड करती है कस्टमर को, और क्या ये वैल्यू कैप्चर कर पाती है, और क्या इस कंपनी को कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है क्या. ये तीन चार फंडामेंटल चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को पूछनी चाहिए. हमको ये बात हमारे इक्विटी रिसर्च कोर्ट में हमारे सर ने भी बताई थी कि जब तक कंपनी को होलिस्टिक अप्रोच से नहीं समझते, जब तक कंपनी पे पकड़ नहीं आती ना, तब तक मजा नहीं आया. जिस दिन हमको ना बैलेंस शीट पे पकड़ आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे पकड़ आ जाएगी, कैश फ्लो पे, नोट्स टू अकाउंट्स पे पकड़ आ जाएगी ना, उस टाइम पे आपको मार्केट्स पे बात करने का ना मजा आ जाएगा. That is something that I have learned. And sir also always said he never did his business with terms ki I want to make a business. He was just enjoying to tell people what he has learned, and he made it. That is something I loved about him, because he never tried to make it. वो हो गया उनसे. So that is something I have huge respect for him. And that was all for today. So till then, stay tuned.